कोई अपना खुद का मजाक बनाता है क्या? पर लग रहा है कि ओम राउत ने यही किया है जब उन्होंने अपने आने वाली मूवी आदि पुरुष का टीजर रिलीज किया था। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज का ये वीडियो बनाने में काफी मजा आया। आदि पुरुष टीजर को हाल ही में उत्तर प्रदेश अयोध्या में एक भव्य लॉन्च मिला। फ्रॉम द लुक ऑफ इट, द माइथोलॉजिकल एपिक हेम्ड बाय द नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर ओम राउत promises a visual spectacle. But then in the first teaser trailer, things are not really looking good and netizens are having a hell of a fun time. End तक जरूर देखना because मैं कुछ netizens के hilarious trolls and comments भी आपको दिखाने वाली हूँ। Before we begin, did you like the look of the thumbnail of this video? If yes, then this is a big shout out to Mihir for his incredible editing and photography skills. He is a young engineer who follows his photography passion. उनका अपना खुद का एक YouTube चैनल है जिसका लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। So do go ahead, check out his channel and hit subscribe to his channel to show your love and support. आदि पुरुष में है प्रभास जिनका लीड रोल है एज राम, सैफ अली खान जिनका रोल है एज लंकेश एंड कृति सेनन बनी है माँ सीता। यहाँ और भी नजर आएंगे जैसे सनी सिंह एज लक्ष्मण, देवदत्त नागे एज हनुमान जी, वत्सल सेठ, सोनल चौहान एंड तृप्ति तोरमन इन सपोर्टिंग रोल। इस मूवी की स्टार कास्ट क्वाइट सिमिलर है ओम राउत के ब्लॉकबस्टर मूवी तन्हाजी द अनसंग वॉरियर। द फिल्म ऑल्सो प्रोमिसेस हेवी यूज ऑफ CGI एंड VFX, बट ऑनेस्टली टीजर का जो लुक आया है ना, एक पुरानी कार्टून फिल्म जैसा लग रहा है। मेरे बेटे का भी यही रिएक्शन था। अब बच्चे तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। टीजर की शुरुआत में नजर आते हैं प्रभास एज लॉर्ड राम पानी में डीप मेडिटेशन करते हुए नजर आते हैं। अचानक से सारे राक्षस उन्हें घेर लेते हैं। He aims his arrows to take a few out. Then we get the first glimpse at Seth's Lankesh with ice blue eyes spraying at a mountain. We also see him showing off his 10 heads to a woman sitting at his feet. He rides a demon dragon creature into battle, and on the other side, Lord Ram is seen joined by his own army that includes Lakshmana and Hanumanji with the popular Vanar Sena. There is a short glimpse at Kriti Senon as Ma Sita as she swings in a meadow with Lord Ram smiling at her. Now that scene is so cute and romantic and it truly won my heart. I'm diverting. Let's focus back. Then follows the scenes of battle between the demons and the Vanar Sena in Lanka. The CGI remains one of pre-2010 Bollywood, a far cry from Prabhas's own Bahubali series. It leaves a lot to be desired. It has an appearance of a low-budget cartoon movie which accounts for the rough edges that are visible in each and every frame. आदि पुरुष टीजर रिलीज होने से पहले मेकर्स ने काफी बज़ क्रिएट किया था ऑन ऑल द सोशल मीडिया। उन्होंने जब फर्स्ट लुक रिलीज किया था एक पोस्टर के फॉर्म में जहाँ पे प्रभास नजर आते हैं एज लॉर्ड राम। द एक्टर वाज डिपिक्टेड ऑन द पोस्टर सीटेड ऑन वन नी एंड एमिंग एन एरो अपवर्ड्स। चलिए अब हर एक कैरेक्टर पे बात करते हैं। Prabhas as Lord Ram. Prabhas has an impressive personality, but somehow I'm unable to associate him with Lord Ram's personality. Just an outlook. In the movie, instead of Lord Ram, आदि पुरुष ये वर्ड यूज किया गया है। क्यों भला? On personal level, मैं रिलेट कर सकती हूँ Lord Ram के नाम से, not to आदि पुरुष name. I have no clue why it was named so. सबसे वर्स्ट चीज, राम ने बाटा की चप्पल पहनी है। खड़ाऊ कहाँ है? What does this mean? Prabhas in role of Ram should be shown like this. What do you think? Leave your comment in this video. Kriti as Ma Sita. Kriti Senon looks stunning as always and I'm sure she will do full justice to this role. What do you think? Leave your comment in this video if you agree. Before we begin, a small and a strong disclaimer from my side. मैं किसी रिलीजन या कल्चर के अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैं सारे रिलीजन्स को इक्वली रेस्पेक्ट करती हूँ और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से है और बहुत सारे डाइवर्स कल्चर से भी आते हैं। मेरा खुद का एजुकेशन एक क्रिश्चियन स्कूल में हुआ था एंड आई लव सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। एट द सेम टाइम मैं अपने धर्म हिंदुइज्म को भी बहुत प्यार करती हूँ और रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने धर्म में जो कुछ भी है उसे एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देख सकूं एंड एट द सेम टाइम नहीं चाहती कि उसका जो एज ओल्ड विजडम है या उसके कैरेक्टर्स का जो डेपिक्शन है वो कहीं ना कहीं चैलेंज हो। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं और आने वाली बातों को गलत नहीं समझेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। सैफ अली खान एज लंकेश. Saif Ali has already shown his prominence when it comes to meaty role, but in this movie रावण के रोल को बहुत ही लाइटली लिया हुआ है एंड इट्स अ बिग मिस्टेक। जो पहली चीज मैंने नोटिस की वो ये थी कि रावण का एक ट्रिम्ड हेयर कट है। ओके, आई मीन एंशिएंट इंडिया उतना एडवांस होगा बट देन इट डजंट गिव द फील ऑफ एंशिएंट पीपल। अटायर भी उनका
काफी डार्क है, मे बी टू शो हिज डार्क साइड। हम सभी जानते हैं कि रावण बहुत ज्ञानी थे, वो भगवान शिव के सबसे प्यारे भक्त थे, तो उनका टीका कहाँ है? वो ब्राह्मण भी तो थे, उनका ब्राह्मण का अटायर कहाँ पर है? हाउ कैन दिस बेसिक थिंग बी मिसिंग? इट रियली फील सैड टू से कि उनका जो आउटलुक है एक मुस्लिम लीडर या तो एक मौलाना का आ रहा है। वर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज सीन राइडिंग अ जमगादर। आई मीन वो जमगादर पे बैठे हुए। कम ऑन गाइज, व्हाट वर द मेकर्स थिंकिंग? वो लंकेश थे जिन्होंने सोने की लंका बनाई, उनका पुष्पक विमान कहाँ पर है? गॉश, दिस इज अ बिग थम्स डाउन। मैं डेफिनेटली आपके भी व्यूज जानना चाहती हूँ इस चीज के ऊपर। डू लीव योर कमेंट इन दिस वीडियो। सनी सिंह एज लक्ष्मण। सनी सिंह लैक्स दैट पावर विच सुनील लहरीज कैरेक्टर ऑफ लक्ष्मण है। सुनील जी का जो लुक था वो एक एंग्री यंग मन का था जो कि शेषनाग को करेक्टली रिप्रेजेंट करता था। आपको क्या लगता है? डू यू थिंक सनी सिंह कैन कीप अप टू दिस एक्सपेक्टेशन? अगर आपको लगता है कि वो एक एक्सपेक्टेशन पे खरी उतर आएंगे या नहीं, डू लेट मी नो इन दिस वीडियो कमेंट। देवदत्त नागे एज हनुमान जी। अगेन देवदत्त हैज एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी एंड आई एम ग्लैड ही ग्रैब्ड अ पावरफुल रोल। बट डू यू नो इट टुक मी अ व्हाइल टू रियली अंडरस्टैंड कि ये सारे लोगों में हनुमान जी कौन थे। उनका जो आउटलुक है, जो गेटअप है, दैट लैक्स द करिश्मा दैट लॉर्ड हनुमान शुड हैव। ऑल्सो अगेन लाइक से हिज आउटफिट एंड आउटलुक लुक्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड रियली नॉट रेलेवेंट। उनकी सिर्फ बियर्ड है, मुस्टैच तो है ही नहीं, एंड ही इज ड्रेस्ड इन लेदर। अब इस पे मैं क्या? लुक इज अगेन लाइक अ मुस्लिम मौलाना। डू यू थिंक देवदत्त नागे कैन कीप अप टू दिस एक्सपेक्टेशन? डू लेट मी नो इन दिस वीडियो कमेंट। जब ओम राउत को इतने सारे ट्रोल्स के बारे में पता चला तब ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके मुताबिक ये फिल्म एक बिग स्क्रीन के लिए बनी है और हमें टीजर में जो नजर आ रहा है उससे हमें कोई निष्कर्ष निकालना नहीं चाहिए। रियली? चलो देखते हैं, जब रिलीज होगा तब पता चल ही जाएगा। मीनवाइल व्हाट यू थिंक? लेट मी नो इन दिस वीडियो कमेंट। In fact, many would remember the animated Ramayana, The Legend of Ram, even recently released Hanuman on Hotstar. ये सारी फिल्म्स आदि पुरुष के सामने बहुत ही पॉलिश्ड एंड क्लीन लगती है। उनका कोई प्लास्टिक फील नजर नहीं आ रहा एंड प्लस इमोशनल एस्पेक्ट को भी बहुत अच्छे से कैरी किया हुआ है। इवन द एपिक टीवी सीरियल ऑफ रामानंद सागर स्टार कास्ट ऑफ अरुण गोविल, सुनील लहरी एंड दीपिका चिखलिया इम्प्रेस नहीं नजर आए। दीपिका even expressed this on her social media. This movie is slated to be released in theaters on January 12, 2023 in IMAX and 3D in multiple language. जैसे हिंदी में रिलीज होगी, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में एंड कन्नड़ा में। Time for my final take on this movie. Of course, movies are all about entertainment, entertainment, entertainment. But मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब बात किसी रिलीजन की आती है या किसी के बिलीव्स को चैलेंज करने की आती है या किसी कल्चर के बारे में होगी तब उसे थोड़ा सा सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए। हमारे देश का फैक्ट यही तो डिस्पेक्ट करता है, हार्मनी एंड बैलेंस इन एवरीथिंग। अगर हम किसी की बिलीव्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, दैट्स फाइन, बट देन एटलीस्ट उसे इंसल्ट नहीं करना चाहिए, उसे चैलेंज कर। आई होप मेकर्स वोंट प्ले विद द इमोशंस ऑफ ऑडियंस। एक्सपेरिमेंटेशन करना अच्छी बात है, जरूरी भी है, बट व्हेन इट कम्स टू टॉपिक्स लाइक रिलीजन, हिस्ट्री और माइथोलॉजी, इट बिकम्स रियली इंपेरेटिव टू हैंडल देम विद केयर एंड लव। आफ्टर ऑल, मूवीज हमारी लाइफ में काफी बड़ा रोल प्ले करती है। काफी लोग मूवीज से प्रभावित भी होते हैं। इमेजिन एज किड्स वी सॉ रामायण इन अ सर्टेन वे, वी सॉ इमेजेस, वी सॉ कैरेक्टर्स इन अ सर्टेन वे, एंड सडनली in our adulthood we are looking at a different look of these characters. Now that becomes difficult to digest. A movie can bring together people or can create havoc. इस मूवी का ओवरऑल लुक थोड़ा डार्क नजर आ रहा है। Even the brightness and the positivity of orange color needs to be added. Having said that, मुझे फिर भी इंतजार रहेगा इस मूवी का, और अगर आप चाहते हैं कि इस मूवी का जो फाइनल रिव्यू होगा वो भी मैं आपको दूं, do let me know in this video comment. So this is all folks from my side, and now time for showing the hilarious reactions of netizens on the social media. But before we move ahead, do make it a point to hit like, share and comment, and do subscribe to my channel and hit the all notifications button. Until next, take care, stay blessed, have fun.